औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। आओ मिलकर हम बढ़ें, अधिकार अपने छीन ले, काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा। We have been free for 64 years, and yet women, comprising almost 50% of the population, have never held more than 10% of the parliamentary seats. It's a pity that roughly half of our population has been denied any role in policy making. Women have faced all kinds of violence, and crimes against them have grown immeasurably. Female feticide, dowry, honor killing, domestic violence, rape, the list is endless. And yet they have little say in framing policies that could ameliorate their conditions. By confining them within stereotypical rules, women have been victimized by patriarchal structures for centuries. Their entry into public spaces has persistently been prevented by gender-specific constructs perpetuated by male-dominated institutions of family, religion and state. The need for making Indian democracy more inclusive and representational led to reserving 33% seats in Panchayati institutions. This was followed by the proposal for similar reservation in Parliament and state legislatures. The bill was introduced in the Lok Sabha by the United Front government led by H.D. Deve Gowda on September 12, 1996. The bill was resisted by conservative elements and was referred to a joint committee of Parliament under the chairmanship of late Ms. Geeta Mukherjee. For 14 years, politicians representing antiquated anti-women attitudes have prevented the tabling of the bill, arguing for a quota within quota and opposing the bill by claiming that in its present form it would only benefit the elite sections among women. The opposition is despite the fact that this is only an enabling bill with a lifespan of 15 years and that the seats will be allotted by rotation to different constituencies in the states or union territories. Maybe that is the real worry, the fear of losing their favorite pocket boroughs. The persistent demand raised by women's organizations and women parliamentarians over 14 years was finally rewarded by the passage of the bill in Rajya Sabha on 9th March 2010. The joy of victory was, however, short-lived since the UPA, instead of tabling the bill, began insisting on a complete consensus in the Lok Sabha. This unnecessary hurdle has frustrated the aspirations of millions of women. As opposition to the bill and efforts to scuttle it began to grow, Anhad, along with a large number of women's organizations and civil society groups, came together to intervene in support of the bill and to expose the anti-women forces who define womanhood through suppression. ये एक बहुत ही अनोखा और राष्ट्रीय आंदोलन है। 200 से ज़्यादा संस्थाएं भारत से इसके साथ जुड़ गई हैं, ये बताने के लिए कि देश भर में महिलाएं ये चाहती हैं कि लोकसभा में ये बिल जल्दी से जल्दी पारित हो जाए। इस कारवां में भांवरी देवी भी है राजस्थान की। इस कारवां में कश्मीर के इतने रिमोट गांव की लड़कियां हैं। आज परंपराओं की बेड़ियों में हमको और आपको जकड़ा जा रहा है। इन बेड़ियों को तोड़ना होगा, तभी हम लोग भी झांसी की रानी की थोड़ी बहुत हिम्मत अपने अंदर पैदा करने में सफल होंगे। हम इस बिल को, इस पूरे कारवां को औरतों की आजादी की लड़ाई के लिए एक अहम कैंपेन समझते हैं, एक अहम आंदोलन समझते हैं। और हमारी मांग सिर्फ ये है कि महिला आरक्षण बिल अपने इसी रूप में, जिस रूप में वो है, इस रूप में बिना किसी तब्दीली और बिना किसी देर के लोकसभा में पारित किया जाए। और दिल्ली में जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, उनको भी कहना होगा कि हमारे अधिकारों के साथ व्यापार करना बंद करो। अगर नहीं करोगे तो दूसरों को भी सबक
garner support for the bill, Campaign Reservation Express was launched from Jhansi on May 20th, 2010. The caravans headed in 3 directions to create awareness about the bill and to interact with the people at the grassroots level. बल्कि जमीन से जुड़े हुए लोगों से बात कर रही हैं, अपनी बात पहुंचा रही हैं, लोगों को आरक्षण के बारे में जानकारी दे रही हैं। लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो इस कारवां का स्वागत है और इस कारवां में आज आप 15 लोग नहीं, 20 लोग नहीं, आज मुल्क के काफी लोग आपके साथ हैं। हमारे साथ बहुत तरह की महिलाएं जुड़ी हैं, चाहे वो ग्रासरूट लेवल पे काम कर रही हो, चाहे बड़े शहरों में काम कर रही हो। भारत भर की अलग अलग जाति की महिलाओं के साथ काम करती हुई महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, तभी जाकर ये कारवां बन पाया है। देश के महिलाओं को एक जोड़ने की बात हो रही है, उनके अधिकारों के लड़ने की बात हो रही है। तो कारवां बहुत तरह के चलते हैं, लेकिन ये कारवां अपने आप में एक मिसाल है। और इसी मुहिम को लेके आज हम जयपुर में आए हैं, अपनी हमारी सबकी लड़ाई में हमारी आवाज में जयपुर की आवाज मिलाने के लिए। కోట అనే దానికి ఏదన్నా మనం సాధించుకుంటే నిజంగా ఆ చరిత్రలో వీళ్ళే ప్రధాన పాత్ర వహిస్తారేమో అనిపిస్తుంది। आप सभी का स्वागत है और आपने महिला आरक्षण के लिए, महिला के अधिकार के लिए जो कदम उठाए हैं हम उसके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें डाल्टनगंज के निवासियों का समर्थन इस महिला आरक्षण बिल को पारित करवाने में हमें सहयोग मिलेगा। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस कैंपेन को आगे बढ़ना चाहिए, इस कारवां को आगे बढ़ना चाहिए और ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए वो हक मिले। इस वक्त 60 महिलाएं और पुरुष पूरे हिंदुस्तान में घूम के इस बात को लोगों तक पहुंचा रही हैं और इस बात के लिए लोगों को उत्साहित कर रही हैं कि वो यूपीए के ऊपर एक प्रेशर पूरा दोबारा से क्रिएट करें कि इस बिल को पारित किया जाए लोकसभा में। महिला आरक्षण लेके रहेंगे, महिला आरक्षण लेके रहेंगे, 33% लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। रिजर्वेशन एक्सप्रेस का कार्यक्रम करके देश की कोने कोने में सफल पूर्वक ये मैसेज संदेश लेकर गए हैं कि ये आरक्षण का मुद्दा का नाटक बंद करो और राजनीतिक दृढ़ता दिखाकर इसको लेकर आओ। ये कारवां भारत की तमाम महिलाओं के मान सम्मान, आत्मसम्मान
और हक की लड़ाई है। ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है कि दिल्ली में राज्यसभा में हिंदुस्तान के प्रतिनिधि चिल्लाकर कहते हैं कि रिजर्वेशन बिल पास है, फिर भी हम लोगों के सामने कैंपेन करना पड़ रहा है। हम ये उम्मीद रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि देश की तमाम महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, किसी भी तबके से हों, वो इस मुद्दे पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। समाज का बंधन है कुछ, समाज के बंधन के अनुसार घर में भी रहेंगे, बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग का जैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस है कि लड़कियों को ज्यादा आगे नहीं, मतलब ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा आगे बात नहीं करना चाहिए। अगर दूसरों के सामने बात किया जाता है तो वो चुप रहे, दबाया जाता है और वही चीज बड़े होते होते भी वो रह जाती है। तो चाहे दलित, मुस्लिम, आदिवासी, अदर बैकवर्ड कोई भी जाति की जो महिला होती है तो सबसे ज्यादा विक्टिम महिला एक बनती है। जब हम समानता की बात करते हैं तो कहने के लिए तो है, लेकिन हमें समान नहीं समझा जाता। गुजरात में महिला एक दिवस सैकड़ों लोगों ने टोळो આવ્યું હતું, તે બધા નારા બોલતા હતા। તેમણે બધાના ઘરો સળગાવી માર્યા અને મારું પણ ઘર સળગાવી પાડ્યું, મારા કપડા ફાડી નાખ્યા, મારા પર તેમણે બળાત્કાર કર્યો। जब पति 25,000 30,000 रुपए उठा रहा तो पत्नी की क्या जरूरत है? बच्चे को बनाए उस काबिल। औरतें घर का काम कैसे कर लेती है, वो बच्चों को परवरिश कर लेती, क्या वो देश को नहीं संभाल सकती है? यानी 60 साल बाद जब भ्रूण हत्या हो, दहेज हत्याएं हो, रोजगार के अवसर भी उनको समान न हो, तो ये आवश्यक है कि विधायिकाओं में महिलाएं पर्याप्त संख्या में पहुंचे। घर तक क्यों सीमित है? अगर ये एक घर को एक अच्छी जगह पे ले जाने के लिए एक जितना औरत की ड्यूटी है तो संसद में भी हम लोग का उतना ही ड्यूटी है। इसका मतलब हमें मौका मिलना चाहिए। महिलाओं को निर्णय में उतनी ही भागीदारी उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए जितनी कि पुरुषों की होती है। महिलाएं आज बराबरी के लिए लड़ रही है, महिलाएं बराबरी आप बराबर आई है और उनको मुंह तोड़ के जवाब भी दिया। अगर औरतें पार्लियामेंट में और हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आएंगी तो एक बहुत ही फंडामेंटल सोशल चेंज हमारे समाज में होगा। बंगर भूमि खुदवा बट्टदिरा, वरनाएना बंगर भूमि खुदवा बट्टदिरा, भारत देशम बागिन बट्टदिरा। Women reservation so that we have more women on the top, at the top level, to be able to protect and safeguard the interests of women. In every sphere of activity, not by choice, but by systematic exclusions from policy options and protective measures. मेरी पत्नी शुद्ध घर में गृहिणी है, शुद्ध गृहिणी है। नारी घर की शोभा है। अब नारी को हम ले जाके भरे बाजार में मजदूरी करवाएं तो हमको फिर चूड़ी पहन लेना चाहिए ना पुरुषों के। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे हम नहीं खिला सकते तो क्या कहे, पत्नी को भेज के खाना खिलाएंगे? पत्नी भी तो खिला सकती है आपको। बिल्कुल बेकार की बात है एकदम। ये सारा चीज ये आप जानते हैं सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। घर की इज्जत तभी रहेगी जब ये घर के औरत और मर्द दोनों मिल के घर को चलाएंगे। मजदूर भाइयों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर मैदान पार करती है। मैं एक औरत जिसने मजदूर के मजबूत हाथों की रचना की, किसान के बलवान भुजाओं की। मैं खुद भी एक मजदूर हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ। मेरा पूरा जिस्म दर्द की एक तस्वीर है। मेरी रग रग में नफरत की आग भरी है। और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो मेरी भूख एक भ्रम है, मेरा नंगापन एक ख्वाब। उनका पति भी मारता है और बाहर के जैसे दंगे फसाद में भी महिलाएं पीट जाती हैं।
हमारे मोहल्ले में जो मैं देख रहा हूँ कि लोग दारू पीते हैं, दारू पी के अपनी माँ अपनी पत्नियों को उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो खा रहे पी रहे मौज ले रहे हैं और लेडीज का काम कर रही है जो महिला। अगर हम सच्चाई में जाकर देखें तो आज भी महिला बहुत पीछे है और इसके लिए हम सभी महिलाओं को लड़ना होगा ताकि महिला आगे आ सके। आजादी के 60 साल से लड़ती आ रही है और लड़ रही है, अभी तक उन्हें उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। ये हम बात लेके चले महिलाओं के अधिकार की, उनके सम्मान की, जो हमने हमेशा से उनको वंचित कर रखा है, वो भी हमारे बराबर है, उनका भी अधिकार है हमारे साथ चलने का और समाज को बनाने का। सती प्रथा की मूवमेंट से लड़ते लड़ते यहाँ तक आए हैं और किन स्थितियों से औरत निकली है, तभी आज हम महिलाएं शायद यहाँ बैठ के इतनी बात कर पा रही हैं। उस वक्त हमने वो ख्वाब देखा था जिसमें हमने कहा था चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे दलित हो, चाहे अपर कास्ट हो, उसको इस मुल्क में हम बराबरी का हक दिलाएंगे। वो सपना जो केवल हम कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों में लिख कर के ही हमने बात खत्म नहीं कर दी, पर इस देश के कुछ लोग वो सपना बहुत शिद्दत के साथ बाद में भी देखते रहे और आज भी देख रहे हैं। आरक्षण मांगो झगड़ा झगड़ा मन जीरो आरक्षण लाके आज काटा जोड़ी, मन जीरो काम लाके आज काटा जोड़ी। ग्रुप मायने आपनी अमर रहे जोड़ी बहना के सके तो मनो आयो थे। आरक्षण मिल जाएगा तो ये होगा कि फ्रैक्शन होगा घर में, क्या कहती महिलाएं जो बहुत कुछ एडजस्टमेंट करके चलती थी उनमें थोड़ा हौसला बढ़ेगा तो उसका गलत उपयोग होगा। देश भी चला सकती है, घर भी चला सकती है, बिजनेस भी चला सकती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो पुरुष प्रधान समाज के ठेकेदार और खास करके नेता जिन्होंने इस देश में क्या क्या किया ज्यादातर हम जान रहे हैं। महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण जब तक नहीं आएगा, महिला एक प्रतिनिधि वहाँ नहीं जाएंगी, अपनी समस्याओं को वहाँ नहीं रखेंगे, तब तक बदलाव लाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इसको तो शुरू में ही करना चाहिए, जब आरक्षण नीति लागू की गई थी उसी समय महिला आरक्षण को भी उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि आज भी महिलाएं उतना विकास नहीं कर पाई हैं और उनकी प्रगति आज भी रुकी हुई है। एक महिला होने के नाते उन्हें महिला आरक्षण के बारे में सोचना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। लड़ेंगे, जीतेंगे। అయితే 14 సంవత్సరాల నుంచి స్త్రీల ఉద్యమం మహిళా రిజర్వేషన్ గురించి ఎంతో కృషి చేస్తోంది. ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ ఉద్యమ కార్యకర్తలు దీని గురించి మహిళల్లో చైతన్యం కలిగించడం, మహిళలకు ఈ విషయం పట్ల అవగాహన పెంచడం, దాని అవసరాన్ని తెలియజేయడం, మనకి ఏం జరుగుతుంది అధికారంలో సగభాగం, ముప్పావు భాగం, పావు భాగం ఎంత వస్తే మనకి ఏం జరుగుతుంది, సంఖ్య అనేటటువంటిది ఎంత ముఖ్యం, మన గొంతులు అక్కడ వినపడటం అనేటటువంటిది ఎంత ముఖ్యం. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. हम लोग सब महिलाएं एक साथ हैं और इस लड़ाई में आगे तक एक साथ ही जाए। सारी औरतों के लिए ये बिल होना चाहिए और पहले तो ये बिल आ जाए। We do not need any interference. Women have come to have their choice, a choice that nobody can take away. The choice to be in parliament, the choice to represent, the choice to be in any political party. पूरी देश से हमारी ये अनुरोध है कि ये महिला को बांटने का कोशिश मत करना। महिला को यदि आप बांटेंगे तो इस देश को बांटने का बराबरी है। అందుకని మతాలు అడ్డు రాకూడదు, కులాలు అడ్డు రాకూడదు, బిల్లు యాజ్ పర్ యాజ్ బిల్ కనే పాస్ అయితే బిల్లు। आज तक आपने रंगनाथ मिश्रा कमेटी का जो सिफारिश है उसको आप लागू करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब महिला बिल का मुद्दा आता है एक व्यापक मुद्दा इस बिल के आधार पर सॉल्व नहीं हो सकता है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि समाज की सारी बराबरी की लड़ाइयाँ हमें विमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर ही लड़नी है,
तो ये तो फिर हम ये मानते हैं कि ये तरीका है भटकने का और भटकाने का असल मुद्दे से। अगर आरक्षण तो ये चाहिए कि किसी भी चीज में अगर 100 में 33 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, जो चाहिए, लेकिन वो योग्य हो तब ना। इतना अत्याचार हो चुका है कि उनका सीमा जो थी तो वो भी समाप्त हो गई है, इसलिए महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। तो आप आरक्षण ले छोड़ा बोला कहीं भी लड़ाई लड़ा चाहे रोड माला सरकार जज जा रहा अपनी वफादारी है और जदी अपन यही मिलना चाहिए अँ राज्य से कौन दे कोई। तो ऐसा है कि हमारी सब बहनों से हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे आदिवासी हो कोई भी हो उसका अपनी लड़ाई लड़नी है, जोरदारी से लड़नी है और हमको सबको एकजुट रहकर रहना है और आरक्षण लेके रहेंगे, मरेंगे मारेंगे जीतेंगे। तो मिलना चाहिए और उसको नीचे स्तर से ही प्रारंभ करना चाहिए। बिल्कुल आरक्षण तो मिलना ही चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बराबरी की बात कर रहे हैं। हम रिजर्वेशन की बात तब नहीं करेंगे जब दोनों बराबर होंगे, लेकिन अभी के समाज में जो हमारा समाज है दोनों कहीं से भी बराबर नहीं। चॉइस की बात करते हो जहाँ पे चॉइस डिसीजन लेना है, मेल मेंबर इजीली अपना डिसीजन ले सकते हैं, उनको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, फीमेल को नहीं ले पाते। तो हम रिजर्वेशन की बात तब नहीं करेंगे जब उनको हर एक चीज में इक्वालिटी मिले, मगर अभी वो इक्वल ही नहीं है तो रिजर्वेशन तो देना ही पड़ेगा ताकि वो इक्वल आ सके। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होगा जहाँ महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की डिमांड हमें ना करनी पड़े। हम उन सबसे ज्यादा खुश लोगों में से होंगे कि अगर इतनी बराबरी का समय आ जाए कि डिमांड की जरूरत ही ना हो, यानी महिलाओं की भागीदारी एक आम बात हो जाए, तो वो दिन हम देख पाएंगे। इसलिए हमें फिलहाल 33% रिजर्वेशन। पंचायत में जितने महिलाएं संरक्षण के माध्यम से जो चुन के आए थे उसके लिए भी बहुत भारी लड़ाई करना है। तो जितनी महिलाएं सरपंच बन के आती हैं, जितनी महिलाएं जिला परिषद मेंबर बनती हैं, जितनी महिलाएं पंचायत समिति मेंबर बनती हैं, उतनी महिलाएं मेरे ख्याल से नॉमिनेशन फॉर्म भी नहीं भरेंगी, क्योंकि उस समय अभी मजबूरी है महिलाओं को चुनाव लड़वाना, क्योंकि वहाँ पे वो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये मौके उनको तभी मिले जब सरकार ने बाध्य किया कि इस सीट पे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं लड़ सकती। जो अभी मैडम ने बात कही उसके लिए शायद इन्हें मिलना चाहिए, 33% जो मिल रहा है वो मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा वो मिलना चाहिए। इनका आरक्षण, इनका सहयोग देना चाहिए, इतना बता। 100% श्योर है कि अगर महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी तो अच्छे से अच्छा देश चला के दिखाएंगे। हमारा मानना है कि महिलाएं ही महिलाओं की ज्यादा अच्छी तरीके से बातें सुन सकती हैं, उनके इश्यूज को उठा सकती हैं। सारे हिंदुस्तान में हम सारी महिलाओं को 33% मिलना चाहिए। ये हमारा हक है, ये हमारा हक हम मिलने तक हमारा ये कार्रवाई जारी रखेंगे। इस तरह की डिबेट्स जो आपको रोकें, वो डिबेट नहीं जो आपको आगे धक्का दे, आपको एनकरेज करे, वो डिबेट्स हो रही है जो आपको डिस्करेज कर रही है, आपको पीछे ले जा रही है। तो जनता का तो कोई कसूर नहीं, कसूर तो उन लोगों का है जो सरकार में है और इस रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट के सामने नहीं ला रहे, जिससे राज्यसभा होगा। ಎನ್ನುವ ಕೂಗಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ, ಎನ್ನುವ ಕೂಗಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ, ಎನ್ನುವ ಕೂಗಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ಶೋಷಣೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಮಹಿಳೆ ಶೋಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ನಡೆದಿದೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ನಡೆದಿದೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಬಡಾಯಿ ಬಂಡರ ಕಾಲ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನತೆ। तो हमारी ऐसी लड़ाई है कि हमारे बहनों के साथ में, महिलाओं के साथ में, लड़की के साथ में ये अन्याय होता है, तो हमारी कोई भी ऐसी सरकार नहीं है, कोई नेता नहीं है कि हमारी ऐसी सुन सके। ये इस देश के लिए और जो हम लोग जीत कर आए हैं, सरकार बनाए हैं, हम सबके लिए एक शर्म की बात है कि हम महिलाओं को उतनी बड़ी तादाद में नहीं ला पाए हैं जितनी बड़ी तादाद में महिलाओं ने बराबरी से
स्वाधीनता के आंदोलन में भाग लिया। इसलिए महिलाओं को राजनीतिक तौर पर और जहां पर जो बहुत अहम भागीदारी महिला की जो होती है, निर्णय निर्माण की जो भूमिका में जो महिला की भागीदारी होती है, उस भागीदारी में महिलाओं को ज्यादा जल्दी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने की जरूरत है। कि ये संभव है कि औरतें इस व्यवस्था को बदलेंगी और हम औरतें ही ये काम करेंगे। वो चाहते हैं कि महिला जो है यदि आ जाएगा ये पुरुष प्रधान देश में, महिलाओं पर जो वर्चस्व है वो उनका वर्चस्व कम होगा। बहुत से देश में ऐसे नेता हैं जो एक जगह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर वहाँ महिला आरक्षण में आ जाएगा तो कल हम कहाँ से लड़ेंगे। तो हम अगर ये रिजर्वेशन दे देंगे तो उसमें से उनको अपने कुछ आदमियों को बाहर करना पड़ेगा। तो बड़ा मामला ये है कि किसको बाहर किया जाए। डेमोक्रेटिक देश है जिसमें हर किसी को इक्वल राइट्स है। हम महिलाएं, औरतें, लड़कियां वो भी इसी देश का सिटीजन है। 3% हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पर शायद यहाँ हम सिर्फ 33% की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे नेता इतना बौखला रहे हैं। शायद उन्हें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन समझानी पड़ेगी। हम 50% है देश में, हम बस 33% मांग रहे हैं। इसमें भी अगर लोगों को परेशानी है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात हो रही है वो एकदम गलत बात है। तो हम ये हक लेकर रहेंगे, चाहे वो आज हो चाहे और साल हमें लड़ना पड़े। सरकार को भी खुल के सामने आना पड़ेगा, अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सामने से कुछ और पीछे से अपने दिल में कुछ और रखे और यही सोचे कि चलो चुपचाप बैठे रहो और ये बिल फेल हो जाए। 10 लाख महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जरिए, चाहे वो जिला परिषद या लोकल बॉडीज के जरिए राजनीति के क्षेत्र में आई है और वो आज नेतृत्व करने की पूरी क्षमता रखती है। जब लोकसभा का चुनाव होगा और सिर्फ औरतों के बीच में ही अगर चुनाव करना है तो मर्दों को औरतों को वोट करना पड़ेगा और धीरे धीरे उनको ये महसूस होगा कि औरतें हमारी लीडर है। और जब वो औरतों को एक औरत बोल के नहीं लेकिन एक लीडर बोल के देखेगा, स्त्री पुरुष समानता का जो संघर्ष है वो आगे बढ़ेगा। एक सच्चा जनतंत्र, ऑथेंटिक जनतंत्र बनाने के लिए, जेन्युइन जनतंत्र बनाने के लिए जरूरी है कि उन सब हिस्सों को वोट देने का अधिकार के साथ साथ उनको भागीदारी का अधिकार मिले जो समाज में किसी न किसी तरीके से पीछे है। इसलिए हम बोले कि हमारी डेमोक्रेसी को एक मीनिंगफुल डेमोक्रेसी बनाने के लिए महिला आरक्षण कम से कम 33% सीट में महिला आरक्षण होने का बहुत जरूरी है। जन विरोधी जितने भी फैसले होते हैं, जितने विधेयक जन विरोधी, महिला विरोधी, ये सब बनते हैं, तब किसी सर्वसम्मति की जरूरत इनको नहीं पड़ती। मगर ये पिछले टाइम से सर्वसम्मति का बहाना लेके इतने आवश्यक बिल को ठंडे बस्ते में डालते जा रहे हैं। और सरकार बिल्कुल बहाने बनाना छोड़ दे कि हम सर्वसम्मति के लिए बात करते हैं। हम सब जानते हैं, हमारे बीच में जितने लोग हैं सब जानते हैं 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। दिख रहा है कि यूपीए कहीं ना कहीं ये सर्वसम्मति की बात लाके अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। और संसद में कुछ प्रश्न उठे और उठते ही बैठ गए। संसद में कुछ प्रश्न उठे और उठते ही बैठ गए। अरे उत्तर जिनके पास न था उत्तर देकर बैठ गए। उत्तर जिनके पास न था उत्तर देकर बैठ गए। अब इनको सड़कों पर लाओ वो शब्दों के सौदागर। सड़कों पर लाओ वो शब्दों के सौदागर। जो भी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, दरअसल ये अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। वो बोलते तो काफी है कि महिलाएं आप आगे आए, लेकिन अपने घर की महिलाओं को किसी को आने नहीं देते हैं। संकीर्ण मानसिकता के लोग ही जो है इस ढंग की भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो हमारे नेता उनको ये कहते हुए शर्म नहीं आई
ऐसी औरतें पार्लियामेंट में आ जाएंगी जिनको देख के लोग सीटी बजाएंगे। मुलायम सिंह यादव को गली कूचे में गरीब बिना पढ़ी लिखी मामूली बेसहारा लड़की पर सीटी बजती सुनाई नहीं देती है। भाई हमने तो कभी ऐतराज नहीं किया कि आप दाढ़ी रख के एमपी बनते हो, गर्दन तक बाल लंबे करके एमपी बनते हो। उन्हें ऐसे एमपी से ऐतराज नहीं है जो जिन पर रेप के चार्जेस हैं, ऐसे एमपी से ऐतराज नहीं है जिन पर गलत के चार्जेस हैं। लानत है उन लोगों पे, उन एमपीज पे जिन्होंने इसका उस तरह विरोध नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था, मुंह नोच लेना चाहिए था। लेकिन औरत के रिजर्वेशन की बात में छटकर ये ठोक बजा के तय कर लो कि बिल्कुल जमीनी महिला आ जाएगी, तब तक न देंगे हम कि 1996 में जब ये बिल सबसे पहले रखा गया तो आप उसी वक्त इस क्लॉज को भी ऐड कर देते। 73वां 74वां अमेंडमेंट हुआ जब पंचायत में और म्युनिसिपल बॉडी में रिजर्वेशन 33% किया गया, जो आज 50% है। आप तभी इस बात को उसी जोर शोर से उठाते। अगर इनकी इतनी ही मंशा थी तो क्यों आज तक उन्होंने अपनी पार्टियों में रिजर्वेशन नहीं दिया? आज तक वो सो रहे थे। उनकी पार्टी का या तो ये कल्चर होगा कि वहाँ पर पढ़े लिखों और ठीक ठाक कपड़े पहनने वालों की सीटी बजाते होंगे। छेड़खानी के खिलाफ बमड़ क्यों कर बोलेगी, छेड़खानी के खिलाफ बमड़ क्यों कर बोलेगी। उनके मुंह पे देकर चाटा मैं खटाखट बोलूंगी, उनके मुंह पे देकर चाटा मैं खटाखट बोलूंगी। खटाखट बोलूंगी, फटाफट बोलूंगी, खटाखट बोलूंगी, फटाफट बोलूंगी। ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी, ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर के कई तबकों में बहस चल रही है। इसी बीच मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्वी जवाद का एक बयान आया है। महिला को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि वो अच्छे बच्चे जो है, अच्छी नस्ल जो है, अच्छी औलाद पेश करे। वो इसलिए नहीं कि अच्छे जूते बनाए, ये वो इसलिए नहीं है कि शराब के कारखानों में काम करे। वो अगर वो पार्लियामेंट में बैठी होगी और बच्चा उसका घर के अंदर होगा तो उसकी तरबियत कैसे होगी? उन लोगों की आवाज को हम मानने लगे हैं कि वो उस कम्युनिटी की आवाज है जो उस वक्त शाहबानों के टाइम पे सबसे पहले विरोध के स्वर में उतरी थी और ये कहा था कि नहीं, एक मुसलमान औरत को कोई हक नहीं है अपने पति से एलिमनी मांगने का। मुसलमान औरत क्या करेगी, कैसे जिएगी, खुदा को क्या जवाब देगी? हमें किसी की दलाली नहीं चाहिए, हम खुद अपना जवाब देना जानते हैं। हम खुदा को क्या जवाब देंगे या इस अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, वो फैसला हमारा है। कहा जाएगा कि जहाँ मर्द काम करते हो वहाँ मुसलमान औरतें वहाँ से काम छोड़ के चली आए, और दूसरी तरफ ये कहा जाएगा कि मुसलमान औरतों का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में अलग से होना चाहिए। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? क्या पार्लियामेंट से सारे मर्द छोड़ के चले आएंगे? First, they should try to empower these people and they should stand with the Muslim women in all their fights. जो मुस्लिम महिला हमेशा घर के अंदर बंद रहती थी, वो आज हम दिखा दिए कि हम भी अपने अधिकारों के लिए बाहर निकल के अपना अधिकार मांगना जानते हैं। मौका सिर्फ मिलना चाहिए। हम बेचारी महिला, मैं बेचारी लड़की, आप लोग आप हमें दें रिजर्वेशन। हम आपसे मांग रहे हैं, आप हमें दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, हम मांग नहीं रहे, ये हमारा हक है, हमें दिया जाए। अंजलि भर जियारा लेकर चलो, सारा जग जियारा हो जाएगा। हंसकर गले मिल गए तो जीवन फूलों के झरनों में धुल जाएगा। भागो
The 3 caravans of women travelled around 30,000 kilometers and visited 60 cities and towns. Women intermingled freely across regional, cultural and linguistic barriers, sharing their experiences and raising questions about the bill. The hopes and dreams of countless women were gathered together in the form of postcards demanding the passage of the Women's Reservation Bill. The caravans reached Delhi, its final destination, on 6 June 2010. एक आवाज में इतनी बुलंदी से और इतनी हिम्मत से अगर ये कारवां चला सकते हैं और देश के कोने कोने तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि ये हक हमारा है और हम लेके रहेंगे. This is so necessary. This is so important initiative, and I'm so happy looking on all these women and the possibility to engagement. I just want to say, women can, women will, let them got this women bill. मगर ये बात ऐवानों तक जहाँ फैसले होते हैं वहाँ तक ये बात पहुँचेगी, यकीनन पहुँचेगी, क्योंकि ये दिल से निकली है और इसका असर बहुत दूर जाएगा. तो ये जो ताकत देश भर की जो इकट्ठी हुई है, जो इस कारवां ने सिजोई है, हमें इस ताकत को लोकसभा के सामने प्रस्तुत करना होगा. रोटी मांगे कंदो करनो पड़सी, अरे प्रेम एकता सभी बनाओ, ग्रुप बनानो पड़सी. सब बहना छेती हो, भारत के सब बहना छेती, धरती पर तो खाओ बहना छेती सको तो चेतनी रो बहना छेती सको तो चेतनी आयो चेतनी रो. सब बहना छेती हो, भारत के सब बहना छेती, धरती पर तो खाओ बहना छेती सको तो चेतनी मानो आयो चेतनी रो रे बहना छेती सको तो On 29 July, people from all over India gathered in Delhi to pressurize the government to pass this bill in the monsoon session. हम हिंदुस्तान की महिलाओं का हक मांगने के लिए आज संसद के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं. 350 से ज्यादा संगठन आज एक ही मांग को लेके दिल्ली में आ चुकी है. वो मांग है महिला आरक्षण बिल यूपीए सरकार जल्दी से जल्दी पास कराना है. लेकिन आज अगर वो बिल
राज्यसभा में पारित के बाद लोकसभा तक नहीं पहुंचाया गया तो निश्चित रूप पर वो 10 कदम लेने के लिए कहीं न कहीं राजनीतिक दृढ़ता का अभाव है। I hope the Congress-led UPA government will show its political will to take the bill to Lok Sabha and get the bill passed as early as possible. अभी बाकी है, आधा ही हुआ है, अब बाकी है लोकसभा में पास करना। और मैं दोबारा ये आश्वासन मेरी पार्टी की तरफ से आपको देना चाह रही हूँ। हमारा आश्वासन है कि ये महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में जरूर पास करना और पार्लियामेंट में जल्द से जल्द 33% महिलाओं को लाना और जरूर हम पास करेंगे। आज भी 533 एमपी से अभी भी सिर्फ 59 एमपी महिलाएं हैं। कि ये कौन लोग हैं जो औरतों को संसद और राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, जो लोग आरक्षण के खिलाफ तरह तरह की दलीलें सुना रहे हैं। ये सदी औरत की आजादी की सदी है, ये सदी औरत की बराबरी की सदी है। तो हम लोग जब यहाँ सब लोग जमे हुए हैं और जो लोग औरत को रोकना चाहते हैं, जो लोग औरत की आरक्षण बिल को रोकना चाहते हैं, ये इतिहास के बहुत बहुत पुराने पन्ने में जी रहे हैं। जब पहला संसद बना 1952 में तो सिर्फ 4% महिलाएं, सिर्फ 4% महिलाएं संसद में पहुंची। आज 60 साल से ऊपर हो गए हैं और जो महिलाएं संसद में हैं उनकी गिनती 8 या 10% है। दुनिया का अगर कोई सबसे पुराना दमन है तो वो महिलाओं पर होने वाला दमन है। बाकी सारे दमन जिनके लिए हम संघर्ष करते रहे हैं वो बाद में शुरू हुए हैं और इस वजह से मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला भी दमन बन गया है। लेकिन इसको जीतना उतना ही जरूरी है जितना मुश्किल है। शर्म की बात है कि हमें वो बात कहनी पड़ती है जो हर एक को ऐसे ही मालूम होनी चाहिए। ये कौन सी बात है कि हम ये कहें कि हिंदुस्तान की और दुनिया की आधी आबादी को उसका अधिकार मिलना चाहिए? ये कोई कहने वाली बात? ये जो इनकलाब है, ये क्रांति, जो जागृति है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस बिल को 4 दिन और रोक लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये दुनिया बदल रही है। 1000 पर गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 पर गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। Despite this massive mobilization, the government hasn't moved. The movement for enacting the bill into law continues to grow, with more and more people raising their voice in support. The historic hour of emancipation cannot be denied for too long. The time has come for women to claim and win their right to run and manage their lives and the life of the nation. They will no longer sit and wait, no matter who stands in their way. Now they are unstoppable. They will not be denied. Not now. एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले।
जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले।